नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लोकसभा में एक बार फिर हंगामा और हंगामा राफेल डील पर जमकर घमासान हुआ। राहुल गांधी ने दागे 5 सवाल और सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए जवाब। L1 जो यूपीए के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था। आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया। पहली बिड में आरएफपी में बेयर एयरक्राफ्ट नहीं था, फुल कॉम्प्लीमेंट था। और ये यहां लिखा है, इन एडिशन टू वेपन्स लॉन्चर्स पाइलॉन्स वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड, द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्चर्स इज कैलकुलेटेड एट बिलो। तो आपने ये जवाब नहीं दिया। आपने ये जवाब नहीं दिया। ठीक है, ये चाहते हैं कि प्राइस कैसे बढ़ा। I want to know if the national security and the sense of urgency, which again Shri Rahul Gandhi reminded us, when the SQs were issued, there was a sense of urgency which was also mentioned. Till today you have not bought aircraft was a very emotionally charged member asking, very legitimate question, I agree. But 18 flyaway you couldn't obtain by the time it was 2014, after 2006. You went away without even getting the 18 flyaway. I want to know why. Why there wasn't an agreement, there wasn't a deal, you didn't buy any, and today you get up to say, what is the sense of urgency that you have appreciated to get the aircrafts? Why was the demand for 126 aircraft changed to 36 aircraft? Who changed? Who changed the requirement of the Air Force from 126 to 36? You're misleading the country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. Your 18 has been increased to 36, and that is coming this year in flyaway condition. अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? और आपने 2 घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? Dassault Aviation could not tie it up with HAL to produce the 108. Listen to the facts. 108 aircrafts were to be manufactured with the transfer of technology, and HAL was to be producing it. They could not come to an agreement. They may say, oh, you deserted HAL, but they did not conclude. There was no agreement signed with HAL. All right, there was no agreement of Dassault with the HAL, and therefore they need not constantly shed crocodile tears for HAL. I'd like to tell them there was no agreement signed. और जब चर्चा हुई पार्लियामेंट हाउस में, तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी राफेल डिबेट से भाग गए। Bofors brought them down. They lost an election. Rafael will bring us back. Rafael will bring Modi back. Rafael will bring Modi back to have a new India. Rafael will bring Modi back to build a transforming India. Rafael will bring back Modi to remove the corruption which is stinking all around Congress party. इस डील पर हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लोगों को, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को क्या ऑब्जेक्शन था, हाँ या ना? Instead of that 18 which they were thinking in terms of getting flyaway, we bought on the advice of Air Force 36 flyaway. So who reduced it to 2? This is how it comes down. Earlier also a lot of number of times. लोकसभा में आज का घमासान भी बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से दागे जा रहे थे सवाल, उन सवालों का जवाब देने के लिए लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगातार बोलती रह गई रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। बीच बीच में कांग्रेस के कारगुजारियों पर भी जमकर बिफरती रही। You're misleading the country
parliamentary by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. I am accusing Mr. Narendra Modi. They need not constantly shed crocodile tears for HAL. I'd like to tell them there was no agreement signed. जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है, उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। राफेल सौदे पर मची सियासी महाभारत का मंच बनी लोकसभा। लंबे वक्त से राफेल सौदे पर बयानों के गोले छोड़े जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर मोर्चा संभाला। उधर सरकार की तरफ से राहुल के सवाल का जवाब देने के लिए खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई। राहुल गांधी के सवाल पुराने थे, लेकिन निर्मला सीतारमण ने उनके सवालों का करारा जवाब दिया। You are now severely under the heat because Christian Michael has come into India. He is going to speak a lot on Augusta Westland. निर्मला सीतारमण 1 घंटे से ज्यादा देर तक बोली। उन्होंने राहुल गांधी के सभी सवालों के जवाब दिए। इसके बाद निर्मला सीतारमण राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं के बयानों और कारगुजारियों पर बिफर पड़ी। पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया, नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, सॉरी HAL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया। तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया। I heard in the Milli on that day, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही है। Later on it was expunged. Later on it was expunged. Now रक्षा मंत्री झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री चोर है, ये भी इस पार्लियामेंट में बोला गया। प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये भी इधर बोला गया मैडम। So if some people have thin skin and they get very sensitive about their names being taken. निर्मला सीतारमण यही नहीं रुकी, वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला तो निर्मला सीतारमण ने राहुल के साथ साथ उनके खानदान को भी लपेट लिया। Even I am sensitive, madam. I don't have a khandan to boast of. I come from ordinary background. I come from ordinary background. I come from a middle class family. I come with my honor intact. Pradhan Mantri ji comes from a very low, poor economic background family. He has come up the hard way. His name is untarnished till today. He is not corrupt. And he has led a clean government. You call them chor? You call them jhoote? And you expect us to sit quiet? Helicopters, right? निर्मला सीतारमण जब ये बातें कर रही थी तब राहुल कुछ कहने के लिए खड़े हुए, लेकिन बैठ गए। शायद उनकी बातों का जवाब तैयार कर रहे थे। बाहर निकले तो निर्मला सीतारमण की बात को ड्रामा करार दे दिया। सर यही पर है राहुल जी। रक्षा मंत्री ने पूरा मतलब वहां ड्रामा शुरू कर दिया। मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को झूठा बोला गया। और ये देखिए, देश के युवाओं, आपको गुमराने का काम है। सीधा सवाल है और उस जवाब का हाँ या ना दे के बिना भाग गई। राफेल पर एक संग्राम संसद में चल रहा था तो दूसरा संसद के बाहर सियासत के अखाड़े में जमकर जुबानी जंग हुई। पोस्टर लगा रहे हैं। राहुल जी ने बहुत ही शानदार सवाल उठाए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मोदी जी पहले मैदान छोड़ के भाग चुके थे और निर्मला सीतारमण जी ने उन बिंदुओं को नहीं छुआ जो सवालात थे। राफेल के मुद्दे पर तो कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया, अब चेहरा छुपाते फिर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में, अब सदन में, सड़क पे भी जाना पड़ेगा तो कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करेंगे। इनके समय घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होता था, हमारे समय राष्ट्रहित में समझौता हुआ है। इस राफेल के सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट फंसे हैं और वो बच नहीं सकते। चाहे कोई कितना लीपापोती करें, चाहे कोई डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहें, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बोल चुकी है। देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है। तब भी राहुल गांधी को अगर सत्य रास ना आए और वो झूठ के सहारे अपनी राजनीति करना चाहें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? संसद के भीतर और बाहर जिस तरह से राफेल डील पर सियासी महाभारत हुई, उससे साफ है कि इस मुद्दे को कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव तक छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिला और सरकार को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। लगभग जिस वक्त पर
संसद में राफेल पर संग्राम शुरू हुआ, ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन 30 सेकंड में मामला निपट गया। राम मंदिर के लिए आज अयोध्या से लेकर प्रयागराज कुंभ तक और प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक हलचल थी, क्योंकि आज 4 जनवरी की तारीख थी और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के सबसे विवादित मुद्दे की सुनवाई के लिए महज 30 सेकंड का वक्त दिया और केस को नई बेंच के पास भेजने का फैसला देते हुए एक नई तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 जनवरी से पहले अयोध्या विवाद पर 3 सदस्यीय नई बेंच का गठन हो जाएगा। 10 जनवरी को नई बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। नई बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करेगी। इस मामले की एक रेगुलर बेंच नहीं थी जो इस मामले को रेगुलरली हियरिंग करे, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज ये कहा है कि 10 जनवरी को उस विशेष पीठ के सामने मैटर लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इंटीग्रम पीरियड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोप्रिएट बेंच और 10 जनवरी को वो बेंच अब इस मैटर में फर्दर कैसे डील करना है, ये सारी दलीलें, ये सारी आर्गुमेंट्स उनके सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर हिंदुत्ववादी नेताओं और साधु संतों का दिल बैठने लगा। समय आने पर सब होता है। सरकार के सामने बहुत से काम है, वो बहुत से कार्यों में सरकार व्यस्त रही है। समय आ गया है, समय आने पर सब काम हो रहा है। अच्छा है अभी भी निर्णय हो जाए। राम मंदिर मेरा आजमान है, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। और हम लोगों ने सोचा था कि आज बेंच बन जाएगी तो जल्दी सुनवाई प्रारंभ होगी, लेकिन जानबूझकर, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं, जानबूझकर कांग्रेस की इशारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है। हिंदू धर्मावलंबियों पर ठेस पहुंचाने के लिए यह कदम जजों का ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तासीर राजनीति पर भी पड़ती नजर आई। बीजेपी के हिंदुत्ववादी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस नजर आए तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस फैसले पर संतोष जताया। देश के बहुसंख्यक समाज, देश की जनता चाहती थी कि कंटिन्यूअस इसकी सुनवाई हो, निरंतर इसकी सुनवाई हो, क्योंकि ये एक कोई असाधारण मुद्दा नहीं, भारत के अस्मिता का मुद्दा है। लेकिन दुख हुआ सुनकर। कोई काम अगर देर भी होता है तो दुरुस्त भी होता है, ये भी है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, लोगों के कहने पे नहीं, रोड पे राजनीति करने से नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट को सबूत चाहिए, पेपर चाहिए। कोर्ट जो भी काम करेगा, जो क्योंकि हिंदुस्तान का नियम और कानून है, कानून बने हुए हैं, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो दुरुस्त होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों ने राम मंदिर का मुद्दा गरमा रखा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि मंदिर मसले पर सरकार अदालत के आदेश पर चलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह इस मुद्दे पर तारीख मिल रही है, उससे साधु संतों और हिंदुत्ववादी संगठनों में बेचैनी देखी जा रही है। आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। जी हाँ, ये ठंड ऑफ हिंदुस्तान है। यहाँ बर्फ भी पड़ रही है, जानलेवा कोहरा भी है और हड्डियां गलाने वाली शीतलहर भी चल रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शहर शहर लोग ठंड का दंड झेल रहे हैं। इस वक्त पहाड़ बर्फस्तान बने हुए हैं तो मैदानों में कोहरा जानलेवा कहर बरपा रहा है, जबकि शीतलहर ने भी लोगों का जीना दुश्वार करके रख दिया है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको हिंदुस्तान में ठंड का कहर दिखाएंगे।
स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ठंड ऑफ हिंदुस्तान, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई कम से कम पहाड़ों पर तो ऐसी परिस्थिति है कि बर्फिस्तान बन चुका है। पूरे उत्तर भारत में लगभग शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन सबसे ज्यादा तो कश्मीर में हालत देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। देश में लग गया है ठंड का आपातकाल। पहाड़ों पर हो रही है बेहिसाब बर्फबारी। झील, झरने, नदियां, पाइप सब जम गए। पहाड़ों पर पीने के पानी का संकट गहराया। मैदानों में कोहरा मचा रहा है कोहराम। सड़कों, हाईवे पर जानलेवा बना कोहरा। शहर शहर शीतलहर ने मुश्किल कर दिया है जीना। हड्डियों में से पार हो रही हैं सर्द हवाएं। यह है ठंड ऑफ हिंदुस्तान। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में ठंड बरपा रही है कहर। हिंदुस्तान कैसे बर्फिस्तान बन गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल से उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, तो मैदानों का भी हाल बेहाल है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, कानपुर से हरिद्वार तक ठंड और कोहरे ने जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कश्मीर। अब की बार जाड़े में कश्मीर जम गया है। यहाँ बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो पारा भी दशकों बाद इतने नीचे गया है। जम्मू से लेकर राजौरी, पुंछ, श्रीनगर, पहलगाम, बारामूला में भयंकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में न सिर्फ आसमान से बर्फ बरस रही है, बल्कि यहाँ सब कुछ जम गया है। सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। ये कश्मीर है। जी हाँ, कश्मीर जिस मौसम के लिए जाना जाता है, अब वो मौसम आ गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से बर्फ गिर रही है। पूरे कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये श्रीनगर की तस्वीर है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सफेद ही सफेद नजर आता है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और ऐसा नजारा है कि जैसे आसमान से बर्फ झड़ रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है। आज सुबह से ही लगातार इस चीज़ की आशंका थी और अब लगभग श्रीनगर शहर में और बाकी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरीके से बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी की वजह से जहां एक तरफ जो ड्राई कोल्ड वेव कंडीशन थी उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, दूसरी तरफ कई सारे लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको खासी परेशानी होने की आशंका है। इसीलिए जो कश्मीर में इंतजामिया है उन्होंने साफ कहा है कि लोगों को जो ऊपरी सतह पे लोग रहते हैं, एवलांच प्रोन जगहों पे लोग रहते हैं, उनको साफ कहा गया है कि सतर्क रहें और स्नो क्लियरेंस जो डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव कराया गया है। अगले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरीके का मौसम रहने की आशंका है। जम्मू कश्मीर की इस तस्वीर को देखकर तो सांसें ही जम जाएं। गाड़ियां बर्फ में दबी पड़ी हैं। होटल की बालकनी में बर्फ जमी है। जिधर देखो सब कुछ बर्फ में दबा है। ऐसा लगता है जैसे आम दुनिया नहीं है, बल्कि हम लोग बर्फिस्तान में आ गए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल की हैं। साइन बोर्ड भी बर्फ से अटे पड़े हैं। और देखिए, बैरिकेडिंग पर बर्फ ही बर्फ है। जवाहर टनल में भयंकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। रास्ते बर्फ से पटे हैं। पेड़ों पर बर्फ है। होटल और मकान तक बर्फ में ढके हुए हैं। इस वक्त पुंछ का हाल कुछ ऐसा समझा जा सकता है जैसे हर शाख पर बर्फ ही बर्फ है। अंजाम ठंड क्या होगा। लेकिन इस बर्फबारी के बीच टूरिस्ट बर्फ से खेल रहे हैं। बर्फबारी ने गाड़ियों के चक्कों पर ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से बर्फीले तूफान यानी एवलांच की चेतावनी भी जारी कर दी गई। लेकिन ठंड और बर्फ की चुनौतियों को झेलते हुए सेना और सुरक्षा बल के जवान चौकियों पर डटे हुए हैं।
और ये है जम्मू कश्मीर का राजौरी। यहाँ भी देखिए बर्फ ही बर्फ, कई कई इंच बर्फ जमी है। बुलडोजर से बर्फ को हटाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि राजौरी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और आतंकी अक्सर बर्फ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देश के जवानों की ड्यूटी और सख्त हो गई है। भारी बर्फबारी से राजौरी के लोगों का बुरा हाल है। हालांकि जो टूरिस्ट यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें इस बर्फबारी में मजा आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही, लेकिन ये बारिश नहीं बल्कि बर्फ की बारिश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस बर्फबारी ने जैसे टूरिस्टों के मन की मुराद पूरी कर दी है। आज 2019 की पहली बर्फबारी आज सुबह से ही शुरू हो गई है। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है कश्मीर के खूबसूरत वादी पहलगाम में। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं बर्फबारी को देखने के लिए। हम 2-3 दिन से यहाँ पहलगाम में स्टे कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कब यहाँ पर स्नोफॉल हो। आज सुबह यहाँ पर स्नोफॉल गिरी तो हम वापस अपने होटल से निकल कर यहाँ पर आया और सुंदर वादियों में आप देख सकते हैं हम अपने फ्रेंड के साथ कैसे इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि कब स्नोफॉल हो, कब स्नो। 4 दिन हो गए हम पहलगाम में आए हुए। हम स्नो का ही वेट कर रहे थे। आज हुई है तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है अपने फ्रेंड के साथ। कश्मीर का बारामूला भी इस वक्त बर्फ के आगोश में समाया है। सड़कों पर सन्नाटा है, आसमान से बर्फ गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ने कर्फ्यू लगा दिया है। लोग घरों के अंदर छिपे हैं, खून जमा देने वाली ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 40 दिनों का सर्द आपातकाल लगा है। पहाड़ों पर मौसम के इस तेवर से मैदानों के लोग ठिठुर रहे हैं। कश्मीर में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि आगे भी ऐसा ही मौसम जारी रहेगा। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ इश्तियाक शोफी, पहलगाम, आज तक। कश्मीर देखा आपने, अब उत्तराखंड देखिए। यहाँ पर तो पाइपलाइन में पानी जम चुका है। जी हाँ, बर्फ बन चुका है। कभी आपने देखा है पानी निकलता हुआ पाइप से ऐसे जम जाए? ये हालत है इस वक्त उत्तराखंड में। लोग पाइप में आग लगा के कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बूंदे तो पानी की टपक जाए। इस बार ठंड की ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है। यकीन मानिए अभी तक आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। देखिए कैसे टोंटी से निकला पानी बर्फ बन गया है। टोंटी से निकली पानी की धार बर्फ की धार में बदल गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के टिहरी में कितनी विकट की ठंड पड़ रही है। जी हाँ, टिहरी में जगह जगह पाइपलाइन जम गई है। सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं, पहाड़ों पर बहने वाले नाले भी वहीं के वहीं जम गए हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत ने जैसे सब कुछ फ्रीज कर दिया है। टिहरी में इस वक्त पारा -5 डिग्री चला गया है। स्थानीय लोग पाइपों में आग जलाकर पीने के पानी का जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही पानी की। पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन होटल व्यवसाय क्या करेंगे? सुबह को उनको पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पाइपलाइन पूरी जम चुकी है। कई पाइपलाइनें फट चुकी है। आपने देखा ही होगा कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि नल का जो है चलता नल का जम रहा है तो तुरंत। सर, पाला जम गया हमारी लाइन पे और इस पे आग जला के जगह जगह पे आग जला के हम पानी खोल रहे, इसलिए पर्यटकों को पानी दे रहे हैं। टिहरी में पानी जमने की वजह से पानी की भारी कमी हो गई है। होटल मालिकों का कहना है कि अगर यहाँ कोई टूरिस्ट ठहरने आता है तो पानी की कमी के चलते निकल जाता है। हालात ये हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड के ज्यादा हिस्से बर्फिस्तान बने हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो गवाही दे रही हैं कि अब की बार जाड़े ने सब कुछ जमा दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए कैसे पानी के पाइप में आग लगाई जा रही है ताकि पाइप के अंदर से बर्फ बने पानी की चंद बूंदें निकल आएं। पाइपों और टंकियों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। वो इसलिए ताकि पीने के पानी का जुगाड़ हो सके, घर में इस्तेमाल के पानी का जुगाड़ हो सके। यहाँ बर्फबारी काफ़ी हुई कल रात को, जिससे कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है और नल सारे जाम हो गए हैं पानी के, और जिसके कारण कि इसमें आग लगा लगा के उनको पिघलाना पड़ रहा है और उसके फिर पानी की व्यवस्था की जा रही है। चमोली में हालात विकट है। सारी पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी पड़ी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। हालात ये है कि बर्फीले रास्तों से गुजरना काफी खतरनाक हो गया है। लेकिन साल की शुरुआत में इतनी बर्फबारी ने टूरिस्टों को मौज मस्ती का मौका जरूर दे दिया है। रात को बहुत ज्यादा स्नोफॉल है, इस वजह से आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, टेम्परेचर काफी
टेम्परेचर भी अच्छा है, काफी सर्दी है, स्नो में अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। फाइनली स्नो मिल गया, मजे आ रहे हैं। होली में भी इन दिनों पर्यटकों की काफी भीड़ जमा है। लोग बर्फ के गोले बनाकर खेल रहे हैं। इतनी जबरदस्त बर्फ है यहाँ पर और ठंड का तो पूरा मजा लिया जाए। मतलब हैप्पी न्यू ईयर 2019 का ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल। लेकिन इस बर्फबारी में मुसीबतें भी कम नहीं है। टूरिस्ट जरूर खुश हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पल किसी बड़े संकट से कम नहीं है। जहां तक भी नजर घुमाएंगे बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। बाबा केदार के दरबार में नए साल की शुरुआत जबरदस्त बर्फबारी से हुई है। मंदिर के आसपास की पहाड़ियां और चट्टानें बर्फ से ढक गई हैं। न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि हाथ पांव जमने लगे हैं। मंदिर के ठीक सामने के परिसर पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। रास्तों पर भी बर्फ की नाकाबंदी है। केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के तूफान से भी केदार घाटी का सामना हुआ। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड कर दी है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, मशीनें भी जमने लगी हैं। यहाँ पुनर्निर्माण के काम में लगे लोग आग जलाकर अपना बचाव कर रहे हैं। बर्फबारी से सरस्वती और मंदाकिनी नदी का पानी भी जम रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी आसमान से सफेद आफत बरस रही है। बढ़ती ठंड ने लोगों की मुसीबत तो बढ़ाई, लेकिन बर्फबारी ने यहाँ आने वाले पर्यटकों की खुशी को दोगुना कर दिया। उत्तराखंड के ज्यादा इलाकों का यही हाल है। पिथौरागढ़ की ऊंचाइयों पर भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में एवलांच यानी बर्फीले तूफान का खतरा बना हुआ है। जिन इलाकों में बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी हुई है, उनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल शामिल हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण संवाल, केदारनाथ आज तक। कश्मीर और उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह पर बर्फ, पानी जम गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। कड़ाके की ठंड से हिमाचल की पहाड़ियों पर जीना मुहाल हो गया है। नदी, नाले, झरने जमकर बर्फ बन गए हैं। पाइपलाइनों में बर्फ जम गई है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर भी बर्फ जमी हुई है। ये देखिए कैसे इस झरने से बहता हुआ पानी शीशे की छड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। खेतों में घास भी बर्फ बन गई है। ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। लोग आग के सामने खड़े होकर इस प्रचंड ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी पानी के स्रोत है, जो पाइपें हैं, पाइपलाइनें हैं, सारी कहीं से फट चुकी है और कहीं जो है जाम हो चुकी है। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पे बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये देखिए मनाली की वादियां कैसे बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। पेड़ों की टहनियों पर भी बर्फ जमी हुई है। सड़कों के किनारे बर्फ से ढके हुए हैं। कुल्लू मनाली में भयंकर बर्फबारी के चलते खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। मनाली की एक और तस्वीर देखिए। जमीन पर गिरी बर्फ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही घंटों में मनाली में कितनी बर्फ पड़ी है। बर्फ की वजह से रास्ते पूरी तरह से ढक गए हैं। यहाँ पहुंचे सैलानी बर्फ में खेल रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जिले के केलांग में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं कल्पा में -3.4 डिग्री और कुफरी में पारा -1.1 डिग्री तक चला गया है। हिमाचल में 4 से 6 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका है। लोगों को ऊंची पहाड़ियों और ट्रैकिंग से दूर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। अभी स्नोफॉल हो सकती है। निचले इलाकों में जो हिल स्टॉर्म भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट रहेगी, ठंड रहेगी। तो आने वाले जो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक है, वो हिमाचल प्रदेश में जो वेदर है वो रहेगा और साथ में ही जो इसमें स्नोफॉल, हिल स्टॉर्म, रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मौसम की चेतावनी को देखते हुए शिमला में जिला उपायुक्त ने सभी विभागों के साथ बैठकें भी की। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि सभी जगह जो भी मदद की दृष्टि से जिन चीज़ों को तैयार रखने की आवश्यकता है वो भी तैयार रखें। पूरी तैयारी है और मैं उम्मीद करता हूं
अगर बर्फबारी ज्यादा भी होती है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं उन क्षेत्रों में आएगी। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। चेतावनी को देखते हुए लोगों ने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सरकार भी अलर्ट है। आज तक ब्यूरो। अब बारी दिल्ली की है। दिल्ली में जिससे मिलिए उसकी जुबान पर बस एक ही बात, बड़ी ठंड है और वाकई बहुत ज्यादा ठंड है। और राजस्थान भी देखिए, रेगिस्तान में कोहरे का कोहराम। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम बदल गया है। शीतलहर शुरू हो गई है, जिससे दिल्ली वालों की कपकपी बंधी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली ठंड से और ज्यादा ठिठुरेगी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो आज ठंड का जो एहसास है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है देर रात से। इनफैक्ट बर्फीली हवाएं जिसे कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल उत्तर भारत में जिस तरह से तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर देखा जा रहा है, खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें। हालांकि अभी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, सुबह के 8 बज गए। हल्का हल्का फॉग जरूर नजर आ रहा है। फॉग की वजह से कई फ्लाइट्स भी डिले हैं, कई ट्रेन रूट जो है वो भी डाइवर्ट हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ है, वो ये है कि आज ठंड का एहसास ज़्यादा हो रहा है। हालांकि टेम्परेचर जो है वो अभी जो रिकॉर्ड किया गया वो 8 डिग्री है, लेकिन सुबह के वक्त 5 डिग्री भी टेम्परेचर गया था। अभी सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आने वाले दिनों में 2-3 डिग्री भी टेम्परेचर होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। कोहरा भी ज़्यादा होगा, खासकर ये पता चला है कि 6 और 7 तारीख को कोहरा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। तो यानी अब ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ ठंड लगातार बढ़ रही है और आज जिस तरह से बर्फीली हवाएं चल रही है उसका असर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में और ठंड होगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर और कोहरे का प्रकोप है। ये राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की तस्वीर है। यहाँ इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि आमने सामने का भी दिखाई नहीं पड़ रहा। फतेहपुर शेखावटी में ठंड ने पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पारा -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। कोहरे में एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। सर्दी की वजह से बाजारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। कानपुर में तो कोहरे के चलते रोडवेज की बस और एक ट्रॉलर में टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में बस में बैठे करीब आधा दर्जन यात्रियों को चोटें भी आईं। यूपी रोडवेज की बस औरैया से हमीरपुर जा रही थी, तभी कोहरे में पीछे से आ रहा ट्रॉलर बस में घुस गया। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।